Good morning to all. How are you all, guys? And I'm fine here to this side, Kiran Verma, and I hope you are doing your studies very well. Today, we are about to start lesson number 9 from First Flight book, that is Madam Writes the Verse, and the writer here is Valli Karan. Okay, so before we read, let me give you a brief, a short description of the story. This is a sensitive story of a 8-year-old girl whose name is Vallimai, and it was a story of her first journey into the world outside her village. The girl, Worldly, at a very tender age, tries to understand the mystery of life and death here. The outside world for Valli is charming and fascinating, but mysterious too. She longs to experience by herself. The talks of the village people about the town added fuel to the fire. She decided to go to the town by all herself without anybody's support. She asked the bus conductor to take her to the town. She herself paid her fare. She collected the money by herself too, and she wanted to devour everything with her eyes because she found the world very mysterious as well as fascinating too. And she saw the canal, palm trees, grasslands, distant mountains, and the blue sky. She also saw such great stretch of green field as far as the eye could see. She overjoyed when she saw a cow running her raised tail tail on the road ahead of the bus. While returning, she noticed that the same body of the same cows was crushed and bleed, and she was dead there. She was moved from within, and she was in so much pain and sorrow by seeing that cow dead there laying. Perhaps she was trying to understand the meaning of life and death in her own terms, and she returned home in the time none of the family members could know her the adventurous journey. Okay, so this is the short story. Matlab, this is a uh, I would say a short summary type I'm giving to you. Now let me discuss the story. Okay, there was a girl named Valimai who was called Valli for short. Okay, she was 8 years old and very curious about her things. Her favorite pastime was standing in the front of the doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There was no playmates for her own age on her street, and this was all she had to do. Okay, so here a girl named Vallimai, her short name was like nickname was Bali, and she was a 8-year girl here, and she was very curious about so many things because as she's small, so she as she is growing, so she's seeing new changes in the world, so she's curious to know about everything around. Okay, and her favorite thing to do is to stand near her house window and to look on the street side what's people going and how they are coming, and uh, taking the bus and returning back home with the same bus. She find it very fascinating and very interesting, so she kept standing there on her window side and looking all the things. As she was having no friends of her age in her street or in her colony, so she had only one thing to do, that is to stand near the window and to look outside the people roaming here and there. Okay, but the Wali standing in the front of the door was every bit as enjoyable of as any of the elaborated games other children played. Watching the streets gave her many new unusual experience. Okay, so as I told that she find it very fascinating, so watching at this street, it gave her an unusual types of experiences and new experiences she got while watching at the street. You can just see that she is standing at a window, door or a window, and looking at the street, people moving here and there, and the bus coming and going, the people returning from their jobs and people going on their job in the morning time and returning at the evening town on the same street with the same bus. Okay, so she was very fascinating about, and she, by looking the people, she got an idea, as she also wanted to do the bus ride. The most fascinating thing all of was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. Okay, so सबसे fascinating thing जो उसको लगी थी वहां पर, वो यही थी कि जो बस उसके विलेज से लेकर के नियरेस्ट टाउन तक ट्रेवल करती थी वो। ओके, और हर 1 घंटे में जो है एक बस आया जाया करती थी वहां पे उसके स्ट्रीट पर। ओके, सो ये वाला जो
वो मतलब अक्सर देखा करती थी कि बस पूरी पूरी जो है पैसेंजर से भरी रहती थी, और जाते टाइम भी वही पैसेंजर्स हुआ करते थे, और जब बस रिटर्न आया करती थी तब भी वही सेम जो है पैसेंजर्स जो है वो हुआ करते थे। तो ये जो एक अनएंडिंग जॉय सोर्स था वल्ली के लिए। ओके, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her hand and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. Okay, so काफ़ी दिन हो गए वो ऐसे देखती रही, और उसके अंदर जो है बस राइड करने की जो एक इच्छा जो है क्रिएट हुई, पैदा हुई, और वो सोचती थी कि अब जो है उसको जो है बस राइड करनी है, भले ही एक बार, लेकिन उसको जो है बस राइड करनी है। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वाज एन ओवरवेल्म डिजायर। और उसकी विश जो है धीरे-धीरे जो है ये बस राइड करने की जो धीरे-धीरे जो उसकी विश हैगी, वो समय के साथ जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, और जो है एक ऐसी इच्छा बन गई, और इतनी मजबूत इच्छा बन गई कि उसको वो पूरा करने के लिए जो है कुछ भी कर सकती थी। उसकी ओवरवेलमिंग डिजायर बन चुकी थी अब ये। Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner. और जो वली है वो अपनी विंडो पर खड़े खड़े ये भी देखती थी उन लोगों को कि बस चालू हो रही हो और बंद हो रही है, तो लोगों का किस तरह से आना जाना हो रहा है वहां पे स्ट्रीट पे, स्ट्रीट के कॉर्नर पे। ओके, their their faces would just wait, okay. Where is- Yeah, their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और जो है लोग जो वहाँ आया जाया करते थे उस बस से, उतरा करते थे, चढ़ा करते थे, तो उनके जो सारे फेसेस है उसके माइंड में एक तरह से छप गए थे, क्योंकि उसकी जो है एक्साइटमेंट जो बस राइड करने की वो धीरे धीरे समय के साथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड ऑन द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ अ टाउन, वली वुड बी टू jealous to listen and would shout in English, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as the slang or expression of disapproval. Okay, तो यहाँ पर जो है वल्ली की फ्रेंड, अगर कोई वल्ली की फ्रेंड जो है स्कूल में या जहाँ कहीं भी वो उसकी फ्रेंड से मिलती थी, क्योंकि उसकी कॉलोनी में तो कोई उसकी फ्रेंड नहीं होती थी, लेकिन वी कैन सपोज कि उसके स्कूल में जो उसकी फ्रेंड्स थी, वो वल्ली को जब भी बताती थी कि उन्होंने एक बस राइड ली है, तो वल्ली जो है बहुत ज्यादा जेलस हो जाया करती थी, और वो जो है चिल्लाया करती थी जोर से, जेलस होकर के, प्राउड प्राउड प्राउड। हालांकि उनको इस वर्ड का मतलब नहीं पता होता था कि प्राउड 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 का मतलब क्या होता है, ना वल्ली को पता था इस वर्ड का मतलब, ना उसके फ्रेंड्स को पता था। लेकिन तो भी वो एक स्लैंग की तरह और अप्रूवल ऑफ और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल के तौर पर जो है वर्ड प्राउड 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 का यूज करती थी। ओके, और उसको ये बहुत ज्यादा जेलसी फील होती थी जब उसके फ्रेंड्स को इसे ये बता रहा होता है कि वो उन्होंने जो है बस राइड ली है। ओके, ओवर मेनी Over many days and months, Valli listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Okay, so जो है वल्ली है वो बहुत दिनों तक उसने जो है क्या करा कि उसके नेबर में और आस पड़ोस के लोगों के बीच में जो बस की कन्वर्सेशन हुआ करती थी ना, कि बस कैसे आया जाया करती है, जो लोग आया जाया करते थे डेली, अप डाउन करते थे बस से, उनकी जो है कन्वर्सेशन को सुना करती थी वल्ली। काफी दिन तक सुनती रही वो, और वो जो है उसके जो बस से रिलेटेड जो कई तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी उन लोगों से पूछा करती थी। बहुत सारे लोगों से वैसे करके, मतलब कि जाके अपने जो है क्वेश्चंस जो अपने माइंड में जो क्यूरियस है वो बस से रिलेटेड या बस राइड से रिलेटेड क्वेश्चंस जानने के लिए, क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वो उन लोगों से पूछा करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इसी तरीके से उसने जो है बस की जो जर्नी है उसके लिए जो है कुछ डिटेल्स इकट्ठा कर ली थी, और उसको पता चला था कि वन वे का जो फेयर है, चार्ज है, वो बस चार्ज है 30 पेसोस, और उधर से रिटर्न वापस आने का चार्ज है 30 पेसोस। तो ऑल इन ऑल शी नीड्स टू कलेक्ट 60 पेसोस बाय ऑल हर ओन। ओके, she heard no one well dressed men say way to Balli, who scarcely saw that much more money for from one month to the next. It seemed a fortune. The trip to the town took 40 minutes, और जो है वली को ये पता चल चुका था कि बस राइड जो है वो उसके विलेज से लेकर टाउन तक, नियर टाउन तक जो है कितना टाइम लेती है, कि बस राइड 45 मिनट्स लगते हैं उन्हें आने में, और रिटर्न वापस आने में भी उन्हें जो है सेम टाइम जो है कुछ 45 मिनट्स लगा करते थे। तो ऑल इन ऑल उसको समझ में आया कि इट कुड टेक 1 hour and 30 minutes फॉर हर टू टेक अ बस राइड एंड टू रिटर्न टू हर होम। ओके, ऑन एंड ऑन
went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और उसने जो है उसका यही सब जो है कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन एंड मनी कैलकुलेशन वो करती है, बिकॉज शी इज अ आई वुड से 8 year girl and she has the curiosity to ride the bus, and she wants to see the nature, and the curiosity in her mind forced her to collect the money at her own self, and to manage the time. And she finally decided that in the noon time, when her mother would be sleeping, at that time she would be taking the ride of the bus. Okay, so she is continuously calculating that she should read at the right time at her home and no one should know about it. Okay, so she is recalculating and replanning the things by her own. Okay, well, on one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving in village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raising commandingly. Okay, तो एक दिन की बात है, आफ्टरनून की बात है। बस उसकी स्टॉप पर आके खड़ी हुई थी और जाने वाली थी अपने मेन हाईवे से। तभी जो है एक स्मॉल छोटी आवाज़, मतलब एक छोटे बच्चे की आवाज़ आई और वो बोलता है चिल्लाते हुए, मतलब वो बच्ची बोलती है चिल्लाते हुए, "स्टॉप द बस, स्टॉप द बस।" ओके, और बस रोकने के लिए हम जैसे हाथ देते हैं ना, वैसे ही शी रेज़्ड हर हैंड कमांडलिंगली। ओके, the bus was slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then! Tell whoever it is to come quickly. It's me!" shouted Valli. "I am the one who has to get on." Okay, so as she raised her hand, the bus slowed down, and the conductor said, "Valli, the conductor moved out his head and said, "Valli, hurry then and get into the bus. We need to get quickly. Okay, we need to go very quickly." And then she shouted and said that, "I am Valli, and this is me getting on the bus." Okay, by now the bus had came to the stop, and the conductor said, "Oh, really? You don't say so?" "Yes, I simply have to go to town," said Valli. Okay, अब जो बस है वो बस स्टैंड पर ऑलरेडी आ चुकी है। और जैसे आपने देखा होगा कि बस जब बस स्टैंड पर उतरती तो काफ़ी सारे लोग बस से उतर करके खाना वगैरह के लिए या पानी वगैरह के लिए या वॉशरूम वगैरह के लिए जाते हैं। तो कंडक्टर बोलता है कि डू यू ऑल्सो वांट टू गो, यू शुड गो। सो वल्ली से कि नो नो नो, आई एम रियली फाइन हियर एंड आई एम हियर ऑन द राइट जस्ट टू मूव एंड जस्ट टू लुक अराउंड, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई डोंट वांट टू गो anywhere to look, I want to sit here in the bus itself. Okay, and I have only the money for coming and returning back to the home. I have total 60 pesos. I don't have extra money to spend. Okay, but first you must go get on the bus. और फिर जो है कंडक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब करने के लिए पहले तुम्हें जो है बस पर चढ़ना होगा। ओके, देन कंडक्टर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वल्ली कंडक्टर की तरफ हाथ बढ़ाती है और कंडक्टर जो है वल्ली को अपनी बस के अंदर ले लेता है। ओके, नेवर माइंड, slack time of the, it was the slack time of the day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wally and laughing with the conductor. Wally was overcome with shyness, avoiding the everyone's eyes. She walked quickly to an empty seat and sat down. Okay, so वली जो है वो यहाँ पर जो है विंडो सीट के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, क्योंकि वो बाहर जो है बस राइड में जो है बाहर का जो नज़ारा है और जो नेचर है उसको ही देख करके एक्सपीरियंस करना चाहती थी। उसका मेन जो है वो इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। तो वली जो है वहाँ पर जो है थोड़ा-सा क्या है कि वो एक बच्चे जिस तरह से ज़िद्दी होते हैं ना, वली भी उस तरह की ज़िद्दी करने लग गई थी। और जब वह वली ऐसे ज़िद वगैरह करती कंडक्टर से कि उसको कॉर्नर सीट पर बैठना है और कंडक्टर उसे बैठने नहीं देता, उसे बोलता है कि तुम बहुत छोटी हो। तो वली जो एक तरह की ज़िद करने लग जाती है और बस में बैठे जो 6-7 पैसेंजर है वो वली की तरफ देखकर कंडक्टर के साथ जो है हँसने लगते हैं। और तो वली को वहाँ पे जो है थोड़ा-सा शर्म आता है, शाय फ़ील करती है वो, और वो चुपचाप जो है क्विकली वॉक करती है और एक एम्प्टी सीट पर जाकर के, विंडो सीट पर जाकर के बैठ जाती है। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। सो बस कंडक्टर जो इसको एक स्लैंग के रूप में और उसको थोड़ा सा ऐसे उसका मजाक उड़ाते हुए उस तरह का बोलते हैं कि क्या हम अब बस चालू कर सकते हैं, आर यू ओके एंड आर यू कंफर्टेबल नाउ। नाउ कंडक्टर ने ऐसे थोड़ा सा एक स्माइल देते हुए उसकी तरफ जो है पूछा ये क्वेश्चन। और फिर जो है कंडक्टर ने उस जो है बस जो सीटी बजाई और जो
आई वुड से कि जो कंडक्टर थे उन्होंने जो है सीटी बजाई और जो बस ड्राइवर थे उन्होंने जो है बस आगे बढ़ाई। जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई तो वैसे ही जो है उन्होंने बस चालू कर दी। इट वाज अ न्यू बस, इट वाज आउटसाइड पेंटेड ग्रीन विथ वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रेप्स अलोंग द साइड्स। और जो है वल्ली जिस बस में बैठी थी वो बस जो है नई बस थी एक बहुत ज्यादा ही, और उसमें जो है व्हाइट कलर की थी पूरी और बहुत ज्यादा ही शाइनी शाइनी और बहुत ज्यादा सुंदर एकदम क्लीन लग रही थी वो बस। तो व्हाइट कलर की बस पूरी पेंटेड थी और उसमें जो है अंदर जो है ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई थी उसकी साइड्स पर। और उस पे जो है द द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और जो ओवरहेड बार्स थे बस के वो सिल्वर के थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली above the windshield there was a beautiful clock. The sets were soft, the seats were सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। तो वल्ली जो है उसका बस का डिस्क्रिप्शन दे रहा है यहाँ पे राइटर कि वल्ली जिस बस में बैठी थी वो कैसी बस थी। तो उसके जस्ट आंखों के सामने जो है वल्ली जो है देख पा रही थी कि एक बहुत ही सुंदर जो है क्लॉक लगी हुई थी और जो सीट्स थी बहुत ही सॉफ्ट और लग्जूरियस सीट्स थी, क्योंकि वल्ली जो है वो एक नई बस में बैठी थी जो कि नई नई खरीदी गई थी, है ना। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया है कि जो नई बस है वैसे वैसा डिस्क्रिप्शन दिया है। बट व्हेन शी started to look outside she found her view cut off a canvas blind that covered the lower part of a window. So she stood up on the seat and peered over the blind. Okay, so वली जो है वो जैसे ही बाहर की तरफ अपनी नजरें घुमाती है तो वो देखती है कि जो ब्लाइंड है वो लगे हुए हैं। तो वो खड़े होकर के जो है ब्लाइंड के जो है बाहर की तरफ जो है देखने की कोशिश कर रही होती है। ओके, और वो क्या करती है फिर जो ब्लाइंड है उसको नीचे गिरा देती है और बाहर का जो सीन है वो एंजॉय करने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग along the bank of a canal. The road was very low. On one side there was a canal and beyond it palm trees, grasslands, mountains were seen, and the blue skies was also there. Okay, on the other side, was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. तो बल्ली जब बाहर देखती है तो उसको जो है कैनाल दिखती है, ग्रासलैंड्स दिखते हैं। ओके, ब्लू स्काईज, ट्रीज, पाम ट्रीज, डिस्टेंट माउंटेन्स दिखते हैं और जितनी दूर तक उसकी आंखें देख पा रही थी उसको सब ग्रीन दिख रहा था। ओ इट वाज ऑल्सो वंडरफुल। सडनली शी वाज सेटल्ड बाय अ वॉइस लिसनिंग। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट एंड सिट डाउन। तो जो वल्ली है वो जो है खड़े होकर के ये सब चीज देख रही थी विंडो के बाहर थोड़ा सा अपना सर निकाल करके। तो उसको जो है एक वहां पर जो है एक आदमी है, मतलब एक मैन है या एक पर्सन है, वो उसे बोलता है कि लिसन चाइल्ड, तुमको ऐसे खड़े होकर के ये सब चीजें जो है देखना नहीं चाहिए, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ करके देखो। ओके, सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। और नीचे बैठते हुए जो है वो देखने की कोशिश करती है कि उससे अब ये सब किसने बोला है। इट वॉज एन एल्डर मैन हु हैड बीन ऑनेस्टली कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। और जब वो देखती है तो उसको ये पता चलता है कि कोई जो है एल्डरली मैन है जो उसके लिए अच्छे के लिए बोल रहा है, और उसके लिए कंसर्न है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है अनॉय हो जाती है कि इस बात से कि वो बुढ़ा उस पे क्यों ध्यान दे रहा है। देयर इज नोबडी here who's a child, she said haughtily, I have paid my 30 पैसेस like everyone else। और फिर वो उसको देख करके बोलती है कि मैं ही यहाँ पर एक बच्ची हूँ, लेकिन मैंने जो है अपने 30 पैसेस उसी तरह से भरे हैं जिस तरह से सभी लोगों ने भरे हैं। सो यू आर नो वन टू पॉइंट मी आउट। ओके, वो इस तरह का एक जो है बिहेवियर या इस तरह से जो है एक अपना ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड शो करती है। द कंडक्टर चेम्ड ऑन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। फिर जो कंडक्टर है वो भी एक स्लैंग और एक मजाक मस्ती के वे में उस जो है एल्डरली मैन से बोलता है कि हाँ सर, ये एक बहुत ही ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी अलोन। और वो कंडक्टर उस एल्डरली मैन से बोलता है कि क्या आपको लगता है कि कोई एक छोटी सी बच्ची जो है अपना फेयर खुद पे करेगी और सिटी तक ट्रेवल खुद करेगी अकेली। ठीक है, वली शॉट एंड एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर साइड, आई एम नॉट अ मैडम। और वली जो एकदम गुस्से वाली और थोड़ा सा जो चिड़चिड़े वे में है जो कंडक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट प्लीज रिमेंबर दैट। और बोलती है कि इस बात को याद रखो कि मैं मैडम नहीं हूँ, एंड यू हैव नॉट गेट येट गिवन मी माई टिकट। और कंडक्टर को बोलती है कि अभी आपने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर साइड मिमिकिंग टू हर टोन। और जो कंडक्टर है वो उसी की टोन में और उसी की चिड़चिड़ी टोन में उसको जवाब देता है कि ठीक है मैं याद रखूंगा। और जो बस में है वो सभी लोग जो है
हँसने लगते हैं। और फिर कंडक्टर जिस तरह से वल्ली की एक्टिंग करके बोलता है, तो वल्ली भी जो है सबको हँसता हुआ देख के थोड़ा-थोड़ा हँसने लग जाती है सबके साथ, ओके। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडल इट टू, और फिर कंडक्टर ने जो है उसको उसकी टिकट रिटर्न करी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, वो बोलता है कि फिर से बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, और बोलता है कि जब तुमने पैसे दिए तो तुम खड़ी क्यों हो, तुम बैठ जाओ। बिकॉज़ आई वांट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। और फिर खड़े होकर फिर से जो है थोड़ा-सा चिड़चिड़े टोन में बोलती है, क्योंकि मुझे खड़े होना है, इसलिए मैं खड़ी हूँ। वो इस तरह से जो है वली बोलती है, ओके। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down child. तो फिर जो बस कंडक्टर है वो बोलता है कि तुम गिर सकती हो, क्योंकि तुम सीट पे खड़ी हो तो तुम गिर सकती हो। अगर स्पीड ब्रेकर आता है या हम एकदम से जो है टर्न लेते हैं या हम एकदम से बस का ब्रेक लगाते हैं तो तुम गिर सकती हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जो है नीचे बैठ जाओ बच्ची। तो फिर वो जो है वली जो बोलती है कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ, और बहुत ही इरिटेटेबल टोन में बोलती है कि आई एम 8 years ओल्ड नाउ, है ना, ऐसा वली बोलती है। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। ओके, सो कंडक्टर बोलता है कि हाँ हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम 8 years की हो चुकी हो। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट। वली फाइनली सेट डाउन। और जो है बस फिर एक नए स्टॉप पर रुकती है और नए पैसेंजर्स आ जाते हैं, और कंडक्टर जो है अपना जो है पैसेंजर्स के साथ बिजी हो जाता है। और वली जो है उसको ये डर होता है कि कहीं उसकी सीट पे कोई और आके नहीं बैठ जाए, इसलिए वो फाइनली जो है बैठ जाती है अपनी सीट पर। एन एल्डरली वुमन कैम एंड सिट बैक बिसाइड हर, और एक एल्डरली वुमन आती है, वो उसकी बिसाइड बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एट द बस स्टार्टेड अगेन। और फिर वो जो है एल्डरली वुमन होती है, वो पूछती है कि क्या तुम अकेली हो बच्ची। और जो है फिर जैसे ही वो ये बोलती हैं तो बस स्टार्ट हो जाती है। वली फाउंड दैट द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, such a big hole she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any मोमेंट। ओके, सो जो है एक वो एल्डरली वुमेन जो होती है वो बहुत अजीब से दिख रही होती है, और उनके कान में जो बड़े बड़े छेद होते हैं, और उन्होंने गंदे से जो है एकदम जो है स्टिंकी से, और जिसकी शाइन चली गई हो ऐसे जो है बड़े से इयररिंग्स पहन रखे होते हैं, और उनके अंदर से जो एक मेटल की स्मेल आ रही होती है ना, उनके पास एक गंदी सी वो मेटल की स्मेल और स्टिंकी स्मेल भी आया करती है। और जो है वुमेन जो है वो बीटल नट मतलब तंबाकू वगैरह चबाती है, और वो देख पा रही कि वो तंबाकू का जो जूस है वो उनके जो है लिप्स से नीचे टपक रहा है। एंड वो ओ माय गॉड दिस इज सो बैड, ऐसा वाला जो है एक रिएक्शन और एक एक्शन जो है वली देती है यहाँ पे। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। और फिर वो जो है एक थोड़ा सा प्राउडली वे में जो वल्ली है जो आंसर बोलती है कि हाँ मैं अकेली हूँ, और मेरे पास मेरी टिकट्स भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। और कंडक्टर फिर वल्ली की बात सुनकर बोलता है कि हाँ वो जो है टाउन की तरफ जा रही है, और उनके पास उनकी 30 पैसों की टिकट भी है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली, बट शी लाफ्ड ऑल द टाइम एंड कंडक्टर लाव टू। और वली फिर बोलती है कि क्या आप ना काम क्यों नहीं करते हो कंडक्टर जी। तो जो है कंडक्टर भी वल्ली की ये बात सुनकर हंसने लगता है, और वल्ली खुद भी जो है ये बात सुनकर हंसने लगती है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिविल। और जो ओल्ड मैन है वुमेन है, वो उसके साथ जो है नॉनसेंस तरह से जो है पेश आती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन। और जो है नॉनसेंसिकली उसको बेवकूफ समझती है ये ओल्ड वुमेन, और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, किस तरफ जा रही हो तुम टाउन के, और तुम्हें तुम्हारे घर का नंबर पता है। तो वल्ली बोलती है कि आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना जो है काम कर लूँगी, और मैं अपने बारे में खुद ध्यान रख सकती हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोलते हुए विंडो की तरफ जो है अपना मुँह घुमा लेती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल, पेनस्टेकिंग, elaborated plan she had made to for she had to thriftily save whatever stray coins came her way, researching some temptation by peppermints, toys, balloons, and like finally she had saved a total 60 paisa. How difficult it had been, particularly that at the village fair she had
और फिर जो है वहाँ पर जो है वो टाउन की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे जो है विलेज विलेज का रास्ता जो टाउन की तरफ जाता है, वहाँ पे जो है फेयर वगैरह लगे रहते हैं, और जो है पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ उसको देखने को मिलती है। हालाँकि उसका दिल जो है बहुत ज़्यादा ही जो है बोलता है कि उसे जो है ये सब खरीद लेना चाहिए, लेकिन उसको टोटल 60 पेसोस बचाने होते हैं अपने जो है बस का फेयर पे करने के लिए। और वो जो है मेरी गो राउंड को भी देखती है, और उसका बहुत ज़्यादा मन होता है कि उसके पास पैसा भी है और वो जो है मेरी गो राउंड में जो है जॉय भी कर सकती है, लेकिन वो नहीं जाती, क्योंकि उसको आफ्टर ऑल पता होता है कि उसे बचे हुए पैसे से जो है अपना घर भी जाना है वापस उसी पैसे से। सो वो उस चीज़ को जो है मैनेज कर लेती है, डिफ़िकल्टी से करती है, लेकिन जो है मैनेज कर लेती है। और the bus rolled down on the cutting across the weird landscape, now rushing a tiny hamlet on the pathway. All sides, sometimes the bus seemed on the point of globing another vehicle that was coming towards the pedestrian across the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. The trees came running towards, but they stopped. The bus reached them and simply stood there, helplessly for a moment by the side of the road, by rushing away in the other direction. तो वो देखती है, जब वो ट्रैवल कर रही होती है, तो वही रोड पर जो है भीड़ वगैरह होती है, और जो है पेड़ गुजर रहे होते हैं, तो वली को ये फील होता है कि वो पेड़ भी जो है उसके साथ साथ जो है एक तरह से रन कर रहे हैं। और वो देखती है कि जो है इधर उधर जो गाय वगैरह दौड़ रही है, और जो है वली जो है बहुत ही हर चीज उसको बहुत ज्यादा फनी वगैरह लग रही होती है, और उसकी जो शी laughed and laughed until there was tear in her eyes। और उसको इतना मजा आता है इस राइड में कि उसकी आंखों से जो है खुशी के आंसू जो है एक तरह से बहने लगते हैं। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर। फिर कंडक्टर उसको बोलता है कि अरे लेडी, तुमने बहुत ज्यादा हंस लिया है, तुमको क्या नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा हंस लिया है? अब कल के लिए भी थोड़ा हंसना अपना बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव ऑफ द रोड एंड सून बस केम टू अ हिल रोड, क्रॉसिंग a speck of a train could be seen in the distance, growing bigger, higher and higher in junior। और जो है क्या होता है कि यहाँ पर जो है एकदम से जो है वल्ली की जो बस है जिसमें वो बैठी हुई है, उस बस के सामने जो है एक काव आ जाती है दौड़ते हुई, जो उसकी पूंछ जो है हवा में ऊपर झूल रही होती है, लटक रही होती है, और वो दौड़ती दौड़ती बस के सामने आती है, और एकदम से बस कंडक्टर जो है ब्रेक लगाता है, और वो उस सीन को बहुत ज्यादा इंजॉय करती है वल्ली। और बहुत ही जो है उसके उसके लिए एक ऑ मोमेंट और जॉ वाला मोमेंट होता है यहाँ पे। और वो देख पा रही होती है कि सामने से ट्रेन गुजर रही है, और बहुत सारी बस उसके आसपास है, बहुत सारे लोग बाग भी खड़े हुए हैं, और सब कुछ अपने अपने काम में जो है बिजी है। और वो वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे जो है कपड़ों की दुकान वगैरह लगी हुई है, और बहुत क्राउड हो रहा है वहाँ पे। और फिर क्या होता है कि जब वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं ना, तो वली जिस बस में सफ़र कर रही होती है, उस बस में क्या होता है कि जहाँ पे वो आगे की तरफ सफ़र कर रही होती है, वहाँ पे वो देखती है कि वही एक यंग काऊ वहाँ पर रोड पर जो है लेटी हुई है, मतलब ब्लीड कर रही है और डेड हो चुकी है ऑलरेडी। और वो देखती है कि कोई फास्ट मूविंग व्हीकल की वजह से जो है वो काऊ जो कि मर चुकी है वहां पर, वही सेम काऊ जो उनकी बस के सामने से फटाफट दौड़ती हुई निकली थी, और जो है वही वहां पर जो है मरी हुई पड़ी है। और वो बहुत ज्यादा ही जो है उसका जो दिल है वो थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सहम जाता है ये सब देखते हुए। और फिर और फिर isn't the same count that ran in the front of the bus on the trip to the town, she asked the conductor। और फिर वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही काऊ है जो हमारे बस के सामने दौड़ती हुई आई थी? तो कंडक्टर बोलता है, नॉडेड करता है उसकी तरफ। और फिर वो जो है ये जान करके बहुत सैड हो जाती है कि हाँ ये वही काव है। और फिर वो बोलती है कि व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट लाइक अ लिटिल व्हाइल अगो एंड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म इन लाइफ एंड लुक सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर legs spread legally fixed, stare in the lifeless eyes, blood all over। और फिर वली को जो है रियलाइज होता है कि लाइफ का जो मीनिंग है, असल लाइफ का मीनिंग है। वो सोचती है कि अभी वो कितना खुश हो के जो है बस के सामने अभी ही थोड़ी देर पहले ही इस तरह से दौड़ रही थी, और एकदम से अचानक जो है वो किस तरह से जो है डेड और विदाउट एनी एनर्जी और डल एनर्जी के साथ किस तरह जो है सड़क पर पड़ी हुई है। और ये लाइफ की जो है कटु सत्य है एक तरह का, वो ये चीज लाइफ का लेसन लर्न करती। द बस मूव ऑन, द memory of the dead cow haunted her, damping her enthusiasm. She has no longer wanted to look out of the window, she said, thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40। और 3
और वो पूरे रास्ते भर जो है वो उस डेड काउट के बारे में जो है सोचती रहती है, उसके माइंड में सिर्फ़ एक वही-वही चीज़ चलती रहती है और अब वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी विंडोज़ के बाहर देखने के लिए, वो चुपचाप अपनी बस पर चिपकी हुई बैठी रहती है एक ही जगह और वही काऊ का ख़्याल उसके माइंड में आ रहा होता है और 3:40 पर उसकी फाइनली जो बस है वो उसके विलेज में पहुँच जाती है और वो खड़ी होती है और जो है खड़ी होती है और अ अ आप बस से उतरती है और कंडक्टर बोलता है कि आई होप टू सी यू अगेन। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर। और जो वली है वो बोलती है कि होप टू सी यू अगेन और फिर जो है कंडक्टर बोलता है कि ओके मैडम और हंसते हुए चले जाते हैं। व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और कंडक्टर बोलता है कि जब भी तुम्हें जो है बस राइड करने का मन हो तो हमारे साथ आ जाना, ज्वाइन कर लेना हमें और अपना जो है फेयर भूल लाना मत भूलना। और वो हंसते हुए जो है बस से कूद जाती है और वो दौड़ते हुए खुशी-खुशी जो है अपने घर की तरफ चली जाती घर में। और जैसे ही वो घर में जो है जाती है तो किसी को भी ये रियलाइज़ नहीं होता है और किसी को भी ये समझ में नहीं आता है कि वली जो है वो बाहर घूम फिर कर आई है। दिस आंट वाज़ रियल चैटरबॉक्स नेवर लूज़ क्लोजिंग हर माउथ व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग। और वहाँ पर वल्ली की आंट भी होती है जिनको भी ये आइडिया नहीं होता है कि वल्ली बाहर से घूम के आ रही होती है। वरना वल्ली की जो आंट है वो बहुत बड़ी चुगलखोर हुआ करती है और मतलब हर चीज़ जो है फटाफट मुँह से बोल दिया करती है, बिल्कुल भी चुप नहीं रहती थी। और जब वो घर पहुँचती तो वो देखती कि उसकी आंट और उसकी मदर जो है लाइफ लेसन्स और लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं और जब वल्ली वो उनकी बात सुनती है तो वल्ली जो है एक सैडनेस वाली साइड साइड लुक देती है और देखती है और फिर एकदम से रियलाइज़ करती है कि है इनको तो कुछ पता ही नहीं चला और मैं घूम फिर कर के आ गई। अपनी फाइनली बस राइड जो है मैंने फिनिश कर ली और एक तरह से जो है स्माइल दे कर के वो चुपचाप जो है पीछे की तरफ मुड़ के वापस जाने लगती है और सोचती है कि अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं चला कि मैं घूम फिर कर जो है वापस आ चुकी हूँ। ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी एंड ये स्टोरी जो है वल्ली को एक लाइफ लेसन देती हैगी कि लाइफ लाइफ लेसन मतलब कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है कभी भी। सो वी शुड एंजॉय आवर एवरी मोमेंट और उसको एक ये जिंदगी का एक कटु सत्य पता चलता है कि आज जीवन है तो कल जीवन नहीं है। अगर आप अभी खुश हो तो जरूरी नहीं है कि आप अगले पल भी जो है खुश रहोगे। यही उसने रियलाइज करा जिस तरह से काऊ जो है 2 सेकंड पहले जो है दौड़ रही थी बस के सामने खुशी खुशी मैरीली जॉय कर रही थी और सेकंड दूसरे ही पल जो है वो काऊ सेम वही काऊ जो है सड़क पर मरी हुई लेटी पड़ी थी। तो दिस वाज द लेसन वी गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। आई होप कि तुम लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। दिस वाज अ वेरी गुड स्टोरी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification of my videos. Thank you for watching. Bye bye. Take care. And subscribe.